Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. As you all are aware that already we have completed our 2 chapter in revision and you have 4 chapters in PT first syllabus. Today we start our 3rd chapter, election and representation. Okay, students. So in this chapter we discuss how the election is important in a democracy and what are the process of election, and so many things we discuss in this chapter. And tomorrow I also send you the very short type of question answers of chapter 2nd. So students, you have write down these question answers as well as which I discuss in the chapters and the videos. You also maintain your notebook. So the main points of this chapter are: the modern period is considered as the age of democracy, where participation of people is ensured at every level of government. In the word of Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, for the people, and by the people. Now, students, I will take you in class 9th. So, in the first chapter of civics, we have read what is democracy and what are the main features of democracy. So, in the main feature of democracy, that uh, citizens, people are the peoples are elect their representatives, and they are the citizens play a very important role in a decision making. Final decision are taken by the legislature means assemblies. लोकसभा में कौन होते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स. So final decision making authorities by the people. ठीक है? So that this is it means. And students, every citizen, if we talk about our country in India, every citizen vote 3 times within a 5 years. Why? Because we have a 3 tier of government. First time we elect our local government like a ward member, and in rural areas, if we lived in a rural area, we elect our panch, sarpanch, etc. है ना? And the second level we elect our MLAs, and the for the central government we elect our MPs. Okay. The procedure of state and center is same. The house name in a central government, lower house is called Lok Sabha and upper house is called Rajya Sabha. And after that the majority, which party gained majority in a Lok Sabha assembly, the leader of the majority party is called became the prime minister. ठीक है? जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती हैं उसका जो लीडर होता है वो क्या होता है? जो एमपीज में जो अपने है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. सेम बेटा, जब हम स्टेट के लिए वोट करते हैं, अपने जितने एमएलए जिसकी पार्टी के सबसे ज़्यादा आते हैं उसका जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर हो जाता है. ठीक है?
और जैसे वहाँ प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में गवर्नर होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चाहे आप लोग अपने किसी भी तरह से नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें डेमोक्रेसी में जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो मस्ट है। द मॉडर्न पीरियड ऑफ, बिकॉज इब्राहिम लिंकन, ये बड़ी फेमस डेफिनेशन है किसकी, डेमोक्रेसी की। इब्राहिम लिंकन ने बोला था, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड द बाय द पीपल, ठीक है। ये डेमोक्रेसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंडिया में बेटा ये भी सब आपको डायरेक्ट तो वो होती है, मैं बताऊंगी अभी आपको। इंडिया में कौन सी है, हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यूएसए में इनडायरेक्ट है। बेटा कुछ जो स्मॉल कंट्रीज होते हैं वहाँ पर जैसे कि हर एक इशू के ऊपर, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, एरिया वाइज जो कम होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं वो, किसी भी इशू के ऊपर, जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में आपको ऑडियंस पोल होती है, उसी तरह से फटाफट आप उसमें अपनी वो दे देते हैं, है ना। तो इसी तरह से वो जो स्मॉल पॉपुलेशन और एरिया वाइज जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि हर मैटर के ऊपर डायरेक्ट जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मान लिया कुछ भी का मतलब किसी भी इशू के ऊपर जब भी फटाफट उनकी ओपिनियन ले ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग उस पर डिसीज़न ले लिया जाता है। अभी आप लोग देखोगे सोशल मीडिया पर भी ये चलता है ना, जिससे पता चल जाता है कि कौन लोग इसके फेवर में है, ठीक है। तो बट इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है कि फर्स्ट वी इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ अस, they will take decision in Lok Sabha and Rajya Sabha as well as in a state assemblies, है वहाँ पर भी जब हम ही इलेक्ट करते हैं ना एमएलएस को, मैंने अभी अभी बताया आपको। In ancient time, the direct democracy was prominent due to the small size of kingdom. Now the states are vast along with higher population, ठीक है। अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है और अब पुराने टाइम में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका ज़्यादा वो था, है ना, ज़्यादा पॉपुलर थी। क्यों? क्योंकि बेटा प्रिंसली स्टेट जो होती थी वो पूरा नेशन तो होता नहीं था, छोटी छोटी स्टेट्स होती थी और पॉपुलेशन भी कम होती थी। In an indirect democracy, the people do not participate directly, but they participate indirectly through the elected representative who act accordance with the wishes of people. अब हमारे जो एमपी, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो हमारे एमपीज़ हैं वो हमारे बिहाफ पर वहाँ लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो हमारी विश के अकॉर्डिंग वहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, अगर वहाँ पर वो हमारे अकॉर्डिंग लॉज नहीं बनवाएंगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट अगले इलेक्शन में हम उनको क्या कर देंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे अगर वो हमारी विश के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते। इसी तरह स्टेट असेंबली में जो एमएलए हमारी अकॉर्डिंग का वर्क नहीं करेगा, जो हमारी लिए काम नहीं करता, तो फिर हम नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें हरा देते हैं। इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम एक्सपीरियंस सम यूनिक फीचर्स एज यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, जॉइंट इलेक्टोरेट, combination of direct and indirect combination, secret valid system and election petition etc. इंडियन जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि क्या क्या है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जानते हो बेटा, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू वोट, है ना, जो भी कुछ भी होता है, इट मीन्स 18 ईयर है इंडिया के अंदर, कहीं पर 20 है, कहीं पर 23 है, ये अकॉर्डिंग टू, ठीक है। एंड द जॉइंट इलेक्ट्रोल कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, बेटा कॉम्बिनेशन कैसे कह दोगे आप कि लोकसभा के लिए तो हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, है ना, अपने, और राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट होता है, वोट परसेंट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल हम जो है करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को तो नहीं हम चुनते ना, कभी सुना है कि राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है? नहीं। जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलती है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग एज वेल एज द स्टेट जो असेंबलीज हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर राज्यसभा के अंदर मेंबर्स जाते हैं। लोकसभा का आपको पता है हम डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है। By universal added franchise,
V means every person above the age of maturity 18 year above entitled the enjoy the right to vote election, है ना, irrepresentative of caste, creed, color, race, language, religion etc. इट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट का मतलब है कि एवरी मेच्योर पर्सन, इट मीन्स अबव 18, कोई वो जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट वोट दे सकता है। उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी कलर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के बेस पर। द एज ऑफ अटेंडिंग मेच्योरिटी इज फिक्स्ड बाय द स्टेट। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। इन इंडिया, इंग्लैंड एंड रशिया इट इज़ 18 ईयर। कौन कौन से बेटा, ये देखो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स में ये आपके इंडिया, इंग्लैंड एंड रशिया, यहाँ पर कितनी है 18 ईयर्स। इन स्विट्जरलैंड 20 ईयर्स एंड अमेरिका 21 ईयर्स एंड नॉर्वे 23 ईयर्स। ठीक है बेटा, ये अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग, बट जितनी भी डिसाइड हो गई वो सबके लिए इक्वल होती है, फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी भी बिहाफ पर, जैसे कि वो रिलीजन के उस पर या कास्ट के या किसी भी उस पर, सब जो इक्वल है, अमीर गरीब सब इक्वल होते हैं। Adult franchise has many merits. It provide political training and the education as well as creates a feeling of self-respect among the people. It ensure participation of people in government. एडल्ट फ्रेंचाइज का बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे क्या होता है कि हमें एजुकेशन मिलती है, पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है, हमें ट्रेनिंग मिलती है, और एज वेल एज हमें फील होता है कि हमारे पास कुछ राइट हैं, हमारी जो डिग्निटी है, और हम पार्टिसिपेशन है हमारा इस कंट्री में, हमारा भी कोई रोल है। ठीक है, 5 ईयर बाद हमको वोट मिल जब होता है तो आप देखते हो बड़े से बड़े जो लीडर आते हैं वो भी आपके घर के बुजुर्गों के पैर छू के जाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आपको इंश्योर करते हैं कि प्लीज़ आप हमें अगर वोट देंगे तो हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होता है, राइट टू वोट मिलने से हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है और हमें लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर हमारा भी पार्टिसिपेशन है। ठीक है, इट इज़ द मेन फीचर एंड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज मीन्स एवरी citizen participate in decision making, that is called a healthy democracy. Okay students, and next है the Constitution of India appoints our election commission also a perform election related activities। अब बेटा देखो, इसमें आप देखोगे कि आपने 9th क्लास के अंदर जब मैंने फीचर्स आपको बताए थे डेमोक्रेसी के, तो उसमें एक ये भी बताया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, अब क्या होता है उसमें कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे कि जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको कंडक्ट करेगी। ठीक है, मान लो बेटा अगर वो गवर्नमेंट के अंडर में आएगी तो फिर तो कभी भी जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी मतलब ऑफिसर्स होंगे, वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके काम कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि वो तो नहीं कह सकते आपकी ये डेमोक्रेसी है ना। तो क्या होता है कि इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये भी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। ऑल्सो टू परफॉर्म इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, इसको बेटा अपॉइंटमेंट होती है इसमें, है ना, प्रेसिडेंट कर देते हैं इसमें। इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद वो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसकी एक बड़ी ऑनेस्ट जो है परसेप्शन होती है, उसकी इमेज जो है बहुत अच्छी होती है, अच्छे कोई मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो जिनके ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं होते, उनको ये बनाया जाता है
एक बार जब प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद किसी का भी इसमें इंटरफियरेंस नहीं होता, ना ही अपोजिशन का, ना ही रूलिंग पार्टी का। ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या क्या ये रिलेट एक्टिविटीज़ जो भी हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो कंडक्ट कराती है। जैसे क्या क्या काम होते हैं? टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट। बेटा इन 2 लाइनों में बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा रेडी होता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब क्या होता है उसका? पहले तो वोटर लिस्ट। क्या होता है बेटा वोटर लिस्ट में? जैसे कि आप इस इलेक्शन में आप सब लोग कितने हो? 14 ईयर्स के हो, 15 ईयर्स के हो। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा इसमें आप क्या थे? माइनर थे। जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो कब होगा हमारा? 2024 में। तो तब तक आप सब क्या हो चुके होगे? मेच्योर हो चुके होगे, आई थिंक, है ना? हो जाओगे। तो उस टाइम आप क्या करोगे? आपका जो नेम है वो वोटर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग सब जो है आपकी एंट्री हो जाएगी वोटर लिस्ट में। और जो ओल्ड पर्सन या किसी भी वजह से जिनकी डेथ हो जाती है उनका जो नेम है वो उसमें से कट कर दिया जाता है वोटर लिस्ट में से। समझ रहे हैं आप लोग? सो इसको मेंटेन करना। जो जिनकी डेथ हो गई है या जो माइग्रेट हो गए हैं वन प्लेस टू अनदर, उनका नाम वहाँ की वोटर लिस्ट में से कट जाता है जो माइग्रेट हुए हैं, और जहाँ कहीं वो गए हैं वहाँ पर जाकर ऐड हो जाता है। पर जिनकी डेथ हो जाती है उनका नेम जो है वो कट हो जाता है ना? और जो न्यू वोटर्स आते हैं उनका नाम इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको, है ना? तो पहला तो होता है प्रिपेयर वोटर लिस्ट, ये हो गया। प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक आपने देखा होगा कि हर पार्टी का सिंबल होता है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी का कमल का फूल, कांग्रेस का हाथ का पंजा, समाजवादी पार्टी का क्या है? साइकिल है। एंड इस तरह बहुत सो मैनी, है ना? बहुत सारे होते हैं रीजनल पार्टीज के भी। तो ये कौन देता है? ये इशू करना किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का। डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब पता है? एक एरिया, जोग्राफिकल एरिया है, डिवाइडेड फॉर द इलेक्शन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी। द कंट्रोल ओवर द मशीनरी ऑफ इलेक्शन। एंड पूरा का पूरा कैसे होगा, कहाँ पर होगा, कैसे ईवीएम जाएंगी, किस जगह की वहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो आएंगी, किस तरह से ड्यूटी लगेगी, ये पूरा का पूरा काम जो है कंडक्ट कराना किसका वर्क होता है? हमारे इलेक्शन कमीशन का होता है। द इलेक्शन प्रोसेस बिगेन विद द इलेक्शन नोटिफिकेशन इशूज बाय द प्रेसिडेंट under section 14 the People Representation Act 1951, which is followed by the announcement of election date by the election commission. सबसे पहले इलेक्शन जो कमीशन होता है वो इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस करता है। उसके बाद क्या होता है? मतलब किस डेट पर किस एरिया में इलेक्शन होंगे ये भी डिसाइड करता है कौन? हमारा इलेक्शन कमीशन। Through election commission performs its duty very well despite the following has been observed during the election। ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है, इसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं हमारे इलेक्शन में। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आर द, ये तो था कि क्या वर्क है और ये क्या चैलेंजेस है। तो इलेक्शन जो है उसमें क्या क्या कमी रह जाती है? यूज़ ऑफ मनी एंड यूज़ ऑफ पावर बाय द कैंडिडेट हैज़ बिकेम डोमिनेंट। बहुत सारे लोग पैसे का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट है वो उसको अपनी डोमिनेंस दिखाता है। इन एक्चुअल वोटर डू नॉट क्रिएट मच इंटरेस्ट इन इलेक्शन। और कई बार जो इलेक्शन में हम लोगों ने कई लोगों को सुनाया होगा कहते हुए, हमें क्या लेना, हमारी तरफ से कोई भी बन जाए, कोई भी आ जाए। तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो असली वोटर है, जो पढ़ा लिखा वोटर है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन सब में
नहीं लेता है। किस सब में? इलेक्शन की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं। मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड एंड फैसिलिटीज़, बहुत सारी जो रूलिंग पार्टी होती है समटाइम वो पब्लिक सरकारी चीज़ों का, सरकारी फंड्स का और फैसिलिटीज़ का यूज़ करती हैं अपनी पार्टी के प्रचार में। इवन द कैंडिडेट लेस देन मेजोरिटी ऑफ वोट बिकेम द विक्टीरियस। बेटा किसी को 5 वोट ज़्यादा मिली, किसी को 100 वोट ज़्यादा मिली, किसी को 200 वोट ज़्यादा मिली, तो उसको वो जीत गया, उसे जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बाकी जो वोट हैं, इक्वल वोट तो हारने वाले को भी मिली, 100-200 वोट का क्या मतलब है? तो उन सब का जो वोट है वो वेस्ट जाता है। द फॉलोइंग सजेशन माइट बी 3 रिमूव द ड्रॉबैक मेंशन। अब ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, जब आपको पूरा मतलब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है ये। अगर हम सजेशन है जिनसे हम अपने इलेक्शन के चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। द कंट्रोल मनी एंड मशल पावर, हमें कंट्रोल करना चाहिए मनी, पैसे से जो करते हैं और जो गुंडागिर्दी से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन शुड बी इनकरेज, वुमेन्स को पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए। द पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड बी प्रोहिबिटेड ना, ये तो वही हो गया मनी मसल। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन कैंडिडेट शुड नॉट यूज वेस्ट रिलेटेड टू द रिलीजन। इलेक्शन के दौरान कोई भी जो कैंडिडेट होता है वो अपनी कंपेनिंग में, मतलब चुनाव प्रचार में, किसी भी तरह का रिलीजन, लैंग्वेज से, कास्ट से रिलेटेड जो है उसका उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। सो बेटा दीज आर द थिंग्स which is very important term regarding to this chapter. Next tomorrow I will discuss some another important things of this chapter. Have a nice day.